أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. When a person does not have an option, they have to pursue further in different directions, but there is no turning back. That is the situation which we are in today, and every human being, that we cannot go behind the curtain of non-existence now. There is no way back. There was a time when we were not there, when there was no responsibility. But now, when you have been created, and you, especially when you are in this face of the earth, now that option is gone. That if someone says, Ya Allah, I don't want hell or paradise, just actually make me non-existent, that option is not there at all now. Now the option is only that you can make your way forward towards the eternal company and friendship with Allah subhanahu wa ta'ala, or eternal misery and friendship with shaitan and evil. That is the choice which you have. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal does not benefit from punishing anyone, or nor He loves to punish. As He azza wa jal said, مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. What will Allah do of punishing you, or get out of punishing you? He does not want to punish you. In shakartum wa amantum. That if only you appreciate someone has created you, and just thanking is not really, you may say, a burden, or you're not giving anything, you're just basically saying thank you, appreciating that you've given me something. I have not given you something. If you gave me something, just offering thank you, appreciating, that is not a big thing. Big thing is that one who is giving something to you. बड़ी बात तो, शुक्रिया तो बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो यह है कि जो नेमत दे रहा है आपको, वो बड़ा काम कर रहा है. अल्लाह जल्ल जलालहू फरमा रहा है कि तुम्हें अजाब दे के अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह को कौन सा फ़ायदा इसमें है. लेकिन इन शकर तुम, अगर तुम सिर्फ कुछ नहीं तुमसे चाहिए, सिर्फ जो है मान तो जाओ ना, जो कुछ चीज़ नेमत तुम्हें दी है मानो तो सही तुम्हें मिली है, मान जाओ. शकर तुम, शुक्र करो, ईमान लाओ, मान जाओ, उस हस्ती को मान जाओ और बस उसका शुक्रिया करो. ये जितनी भी हम इबादत करते हैं ये सारा शुक्र है, असल में ये सारा शुक्र है और कुछ भी नहीं है उसमें. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked by his Sahaba Ikram Rizwan Ajmain that you are ma'soom, forgiven, free from sin, Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with you, and He does not, you are free from everything, every evil, and you are still
spending time in worship that your blessed feet are swelling and your eyes are being affected. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam repeated this, afala, that shall I not become a thankful servant to Allah subhanahu wa ta'ala? Because so this shows that the ibadah which is done, like we do ibadah on Eid day. So Eid day, Allah is giving every blessing to us. तो वो that 2 rakat we do, वो क्या कहते हैं भाई शुक्र के लिए. This is true. कुर्बानी बंदा नहीं दे रहा. Person is not offering sacrifice. What is that sacrifice? You are slaughtering and going back into your stomach. आप ही कोई जानवर ज़बह कर रहे हैं, आप ही के पेट में दोबारा जा रहा है, आप खा रहे हैं, तो आपने क्या कुर्बानी दी? कुर्बानी तो जानवर ने दी है. The sacrifice which has been made is by the animal. या अल्लाह पाक ने दिया आपको वो जानवर या नेमत अता फरमाई, आपने तो उसी के पैसों से वो जानवर खरीद के खुद ही खा गए, या तो भाई चलो खुद नहीं मिल रहा, खुद ही खा गए. तो meaning the all of the Islam and teaching, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned his quality, that Allahu Samad. And what does that mean? You read every day, Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad, Qul huwa Allahu ahad. Ahad refers to that he is one. Like I mentioned to you very often, that this whole universe, this Jannats, and so vast Jannah, so vast universe, so vast heavens, इतने इतने बड़े आसमान, इतनी बड़ी जन्नत, इतने बड़ा अर्श, एक दूसरे माबूद को बर्दाश्त नहीं कर सकता. लौ कान फीहिमा आलिहा इल्लल्लाहु लफसदत. Allah subhanahu, if there was any other God beside Allah, there will be fasad in the heavens and earth, all will be chaos. सारा फसाद हो जाएगा कि एक माबूद सारी अर्श भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो जब ऐसी बात है कुल हुवल्लाहु अहद, तो फिर हमें अल्लाह पाक मैसेज दे रहा है कि तुम्हारा छोटा सा जिस्म कैसे बर्दाश्त करेगा और किसी माबूद को, बातिल माबूद को. How will your own little, if such vast universe is not tolerating, cannot tolerate a false deity, another God, how will your small body and your life is going to tolerate and be safe if you allow another false deity, false God will also you are imposing, like the will of the nafs. Nafs is ma'bood for some people. Or anywhere you think where benefit, harm, honor, dishonor is coming. Like Hazur Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah said that whoever you believe can give death, life, honor, dishonor, give you money or not, or give you rizq, withhold, he is your ma'bood. Be it a person, be it a king, कोई भी वो है, वो बातिल माबूद है. माबूद वो होता है जिसकी हर बात मानी जाती है, उसके पीछे चला जाता है. अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवा. Have you not seen the person who has made his own desires, own passion his God? That he does whatever his own passion say. Whatever he feels like he does, whatever he does not feel like he doesn't do. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying Qul huwallahu ahad, that he is unique, he is ahad. But this point which I'm trying to get to is he is samad, Allahu samad. What does samad mean? He is, again and again we recite in the salah, and it is also very, very beloved surah to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala loves this surah because it's giving message to you, Allahu samad. In other words, what he's saying, what is samad? The samad is the person who only want to give, and he doesn't want anything nor he need anything. He's all the time, forever and ever and in future, giving only. He likes giving and he will give, and he himself not need anything. He's need free, nor he is asking anything from actually the people. Nor he is asking anything. Allahu Samad, कि अल्लाह की ज़ात वो जो सिर्फ देती है
मांगती कुछ नहीं, बंदे से कुछ नहीं लेती। अगर बंदे से कुछ मांगा तो वो भी उसी को देना। लाइक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, that we have created you for worship. So a person can think maybe Allah subhanahu wa ta'ala need our worship, he benefits. He said, Ma uridu minhum min rizq. This is not only from physical point, over spiritual point of view. Allah is subhanahu wa ta'ala, in other words, it is being said that with worship also you are benefiting the only. Your stomach of your spirit is being filled with the worship. इबादत खाने से आपके जिस्म का पेट भरता है, तो अल्लाह को आपने क्या दिया? इबादत से आपकी रूह का पेट भरता है, तो अल्लाह को आपने क्या दिया? अल्लाह को तो नहीं, आप ले ही रहे हैं कुछ। हम समझते हम बड़े खुश हैं कि भाई हम इबादत कर रहे हैं, वी आर वर्शिपिंग अल्लाह, वी आर डूइंग फेवर, आई एम वर्शिपिंग। दिस इज नो फेवर, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि आप खुद खा रहे हैं। आप अपनी अम्मी अब्बू किसी को कहें कि मैं खा रहा हूँ, आपका बहुत एहसान कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग ट्वाइस अ डे, डूइंग ग्रेट फेवर टू यू। अपने एम्प्लॉयर को कहें, गवर्नमेंट को कहें, आई एम डूइंग ग्रेट फेवर, यू नो, आई ईट 2 meals a day, 3 meals a day, and this is a big favor, you know, you should appreciate I am eating. ये तो कोई बात नहीं कि मैं खा रहा हूँ आप मेरी कदर करें, वो तो आप खुद ही खा रहे हैं। इसी तरह जो है, लाइकवाइज एक्चुअली इबादत फिल्स द स्टमक ऑफ द स्पिरिट। इबादत रूह का पेट भरती है, रूह पुरसकून होती है। दूसरा खाना खाते हैं, जिस्म पुरसकून होता है। आप तो जो है आप ही हासिल कर रहे, अल्लाह पाक को तो कुछ नहीं दे रहे। और यहाँ से उठ के आप जन्नत में जाएंगे, वहाँ भी आप ही ने खाना है, ना फरिश्तों ने खाना है, ना अल्लाह पाक तो है ही पाक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज फ्री, हु इज गोइंग टू एंजॉय द ब्लेसिंग्स इन जन्नत, जन्नत में भी आपने। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला has done favor upon us, and he's saying that I don't love. He does punish with justice. Allah subhanahu wa ta'ala is al-adl. He does punish people when to execute justice, but he does not love punishing, because in the hadith we find, what does he love? What does he like? Allah subhanahu wa ta'ala said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned one hadith, Allahumma innaka afuwun kareem tuhibbul afwa. Oh Allah, you love forgiving. So it means he doesn't love punishing. अल्लाह पाक फरमा रहा है कि हज़रत अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि अल्लाह पाक माफ़ करने को पसंद फरमाता है, अजाब देने को पसंद नहीं करता। खुद अल्लाह इन्नका अफून करीम तुहिब्बुल अफ़वा, कि आप माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह पाक अजाब को पसंद नहीं करता। सो द ग्रेटेस्ट थिंग विच यू कैन डू इज दैट कम टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला out of love, because he loves you so much. He's only benefiting you, he's only giving you, he's given you life, he wants to give you even a better life as well. But if you come with fear, still there is benefit. अगर खौफ की वजह से, जहन्नम से डर के कोई आ जाए, दोज़ख के डर से अल्लाह की तरफ, फिर भी उसको फ़ायदा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो जन्नत और मोहब्बत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, he comes out of love. It's like a father, you have a father and then you obey him because of his punishment, because of his discipline, because he will punish you or deprive you of blessing, and you are obeying. Okay, so you still benefit. If you go to school because of fear, you still benefit. But one is that you are obeying your parents out of love and respect and honor and love. That is completely different relationship. And Allah subhanahu wa ta'ala wa azza wa jal loves the people and his servants more than anyone. If even mothers, even other, कोई भी इतने अल्लाह बंदों से मोहब्बत नहीं फरमाता जितनी अल्लाह की ज़ात जो है वो बंदों को चाहती है, बंदों से मोहब्बत फरमाती है। और इसीलिए तो अल्लाह पाक ने, देखें, आपको कोई तोहफ़ा दे देता है,
Someone gives you a car, someone gives you £1,000,000, someone gives you, offers you a job, someone offers you a phone. आप खुश हो जाए, मुझे बहुत अच्छा फ़ोन दिया, मुझे बहुत अच्छी गाड़ी दी, मुझे बहुत अच्छे कपड़े दिए, मुझे बहुत अच्छा मकान दिया, मेरी शादी अच्छी, किसी ने बेटी दी अच्छी. तोहफे हैं ये. These are gifts. In Allah's treasure, अल्लाह के ख़जाने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मखलूक में कोई कीमती तोहफा नहीं, जन्नत भी नहीं है उन्हें. जन्नत, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल, एंजल्स, मलाइका, अल्लाह के ख़जाने में हजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह के ख़जाने में कोई कीमती तोहफा अल्लाह ने वही हमको दे दिया. इससे बड़ी बंदों से रब की मोहब्बत की निशानी क्या हो सकती है? What can be more indication and evidence of love of Allah subhanahu wa ta'ala for the servants that he is given the most precious gift which he has to us. He sent us. We were living in a small bowl of fire. हम तो एक आग के गोले में रहने, ये ज़मीन के अंदर तो आग भरी हुई है, पानी भरा हुआ है, गंद भरा हुआ है, इसमें मिट्टी है, पानी है, आग है, तेल है, तो आग का गोला भरा हुआ है. इट्स लाइक filled with fire and lava. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam living somewhere wherever Allah subhanahu wa ta'ala created. आप तो अल्लाह पाक के, हाँ, अल्लाह पाक की हजूरी में, आलम अरवा में, अल्लाह बेहतर जानता है जहाँ अल्लाह ने उनको पैदा फरमाया. And he chose from millions and billions and trillions stars and planets this small particle. अब to pinpoint it, मैंने यहाँ सबसे कीमती, सबसे अपने जो मेरा कीमती तोहफा है, मैंने उसको भेजना है. तो इससे क्यों भेजा है? हमारे लिए और आपके लिए, for me and you. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala wants us to enjoy forever and ever. अल्लाह पाक यही चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए उसके साथ रहें. देखें ना, कोई आपको अमीर बंदा साथ बैठाने के तैयार नहीं, कोई आपको बादशाह के पास बादशाह बैठाने के लिए तैयार नहीं, लेगा भी वो कितना बैठाएगा अपने लायक. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको, इंसान को में वो सलाहियत रखी कि अल्लाह बंदे, मैं चाहता हूँ तुम मेरी सोहबत में, मेरी हजूरी में, मेरी ज़ियारत में, जन्नतों में हमेशा के लिए मेरे साथ रहो. मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया. यही तो इबादत का मकसद, इबादत का तो यही मतलब अल्लाह पाक यही चाहते हैं. So Allah subhanahu wa ta'ala has put so much value on you. इंसान को इतनी कीमत डाली, इतनी फरिश्ते की कीमत नहीं डाली, इतनी किसी और मखलूक जो ये ज़मीन आसमान है, सिर्फ जिन और इंस को अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा, ख़ास तौर पर इंसान को, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, दैट ही वांट्स you to be in his company forever and ever and ever. He has chosen you. You have potential. अब मेरी और आपकी ये है कि हम शैतान की कंपनी चाहते हैं. We want company of शैतान. We want company of each other evil people and sins and actually disobedience and drugs and zina and all kind of these things. And we are losing our great chance. हम बहुत बड़ा एक यानी अपने मौका जो है वो अपने हाथ से खुद ही वो अपना ज़ाया कर रहे हैं. ये ऐसी मिसाल ही है कि कोई बंदा खूबसूरत तरीन औरत के साथ आपकी शादी करना चाहे, भाई आपकी इसको साथ हमारा निकाह कर देते हैं, बिला तशबीह बिला मिसाल, आपको वो पूरी दुनिया, और वो एक गधी को साथ लेके फिर रहा है. A person who is given offer to, he can marry the most beautiful women in whole of the world, and he is roaming around with a donkey, ass or bitch, और ये वो जानवरों के साथ फिर रहा है, कभी कुत्तों के साथ फिर रहा है, कभी जो है वो जो है और चीज़ों के साथ फिर रहा है, चूहों के पास फिर रहा है. तो अब उसकी बदबख्ती कितना भी, उसको तो मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम अगर चाहो तो तुम्हारी ये शादी हो सकती है, तुम ऐसे रह सकते हो महल में. अब वो चूहों, बिल्लियों और कुत्तों के साथ फिर रहा है. तो इससे फिर जो है, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? So Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the best women for you in Jannah, the best dwelling places, the best company. Which company? You want
Yeah, my friend who takes me to cinema, who give me one, actually, drugs, who gives me this, who gives him this. And Allah subhanahu wa ta'ala wants you. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I want to give you the company of Anbiya. Prophets will be not actually here, people who are roaming around here, kuffar and sinners and shayateen, and people who will abandon you after they have fulfilled their wish from you. Allah subhanahu wa ta'ala, in spite of that, I will give you the company of prophets. Prophets will be sitting with you. You will be sitting in the company of prophets. Was Siddiqeen, the highest level awliya, the friends of Allah, who are not prophets but actually very high ranking awliya, Siddiqeen, like Sayyidina Abdul Qadir Jilani and the great awliya, for example, or the Sahaba Ikram Rizwanul Alayhim Ajma'een, Tabi'een, was Shuhada was Salihin. And a person who is not interested in that, he's interested in all these evils. And all these evils and companies of evil and shaitanic company, they are going to leave you, they're not going to benefit you. So Allah subhanahu wa ta'ala chose, especially in this blessed month, ये रबीउल अव्वल शरीफ, मिलाद शरीफ का महीना, इसीलिए मोमिन को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए हजूर अलैहिस्सलाम को चुना. हमारे लिए, for us Allah chose Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. काश हम भी हजूर अलैहिस्सलाम को चुन लें. मसला ये है कि हम नहीं उनको चुन रहे. हम तो कहते हैं हम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, हम ये टाम के पीछे चलेंगे, हम तो ये इसके पीछे चलेंगे, हम तो फलां के पीछे चलेंगे, हम तो मसरों में. Allah has chosen the Prophet ﷺ for us, but we are not choosing Rasulullah ﷺ for ourselves. अल्लाह पाक ने तो हमारे लिए सबसे बेहतर हस्ती को चुना. अब हम नहीं चुन के, हम तो कहते हम इसके बाद बरादरी के पीछे चलना है, बीवी से भी कौन काम आएगा आपके. दुनिया में ही भी ये लोग अब बेवफाइयाँ होती रहती हैं, और आखिरत में तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा, एक नेकी नहीं देगा. एक नेकी क्या देनी, सारे कहेंगे या अल्लाह हमें बचा, अगर कोई मिल गया तो हमें नेकी दे दे. ये एक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही होंगे जो अपनी नेकियां भी तकसीम कर रहे होंगे क़यामत वाले दिन, क्योंकि वहाँ ये तो अल्लाह ने इख्तियार दिया शफाअत का, माफ़ी का. अमाल अल्लाह पाक फरमाएगा हाँ किसी की नेकियां ली जाएंगी, किसी की दी जाएंगी अल्लाह की इजाज़त से, with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Some, those who have sinned, they will have to give their virtues to others. Those who have wrong, virtues will be exchanged. लेकिन वहाँ कोई देगा नहीं. People will be just actually running away. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. हर एक से भाग रहे हैं. Everyone is running from each other, fleeing away. Mother, wife, husband, children. And what is the Prophet sallallahu alaihi wasallam doing? वो क्या कर रहे हैं? फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमा रही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, where shall I find you on the day of judgment? There is no address which I have. There will be millions, billions people. I don't know where I will be, where things will be. Such a big plane of Hashar, thousands of years of life. It's not 50, 60 years life. It is thousands years. 2,000, 3,000, 50,000 maximum. 50,000 year life is a big life. So she asked, Rasulullah said, one of my address in the plane of Hashar is scales, mizan, where the amals will be weighed. That is my address on the day of judgment. I have 3 addresses, and one of my address is there. But that will be my address. If you ask angels where is mizan, where they have been reckoned, that is one of my, I will be there. Now what will be Rasulullah doing there? That is the question. अभी आप अलैहिस्सलाम वहाँ क्या कहा, आपका तो हिसाब किताब नहीं होना. आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. He is not, his amals are not going to be, as the ulama say, वहाँ उलट होगा मामला. जैसे यहाँ the heaviest part goes down on the day of judgment, that scale, the heavier part will go up. वहाँ वो ये gravity नहीं होगी like now. Actually it is, system is changed there.
Anyway, but actually thing is that if the whose ever good deeds will be more or less, or the sins will be more or less. So what will Rasulullah be doing there? भाई आप अलैहिस्सलाम क्यों हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को फरमा रहे हैं कि मुझे अगर ढूंढना हुआ तो एक जगह, एक मेरा पता, एक एड्रेस है मेरा, उसको मीज़ान कहते हैं, जहाँ हिसाब किताब होगा। तो उलमा ने लिखा है, उलमा हैव सेड वन, देयर सेवरल रीजन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी देयर। एक तो उम्मतियों की हौसला अफजाई के लिए, कोई तो वैसे ही परेशान होंगे देख के, भाई हम तो मारे गए, ये तो हिसाब किताब हमारे अमाल क्या हुए हैं, what our deeds are, and they look millions and millions bad deeds and all these things accumulated, meaning some will start becoming hopeless. एक तो ये कि वहाँ हजूर अलैहिस्सलाम का सिर्फ खड़ा हो जाना ही बहुत सारे लोगों को पुरुम्मीद दिला देगा। अब देखें ना कितना सुकून आ जाए बंदे को, कोई मददगार बंदे का जो आज इसको ये दुनिया में भी आ जाए। आपको पुलिस ने पकड़ा हुआ है, सॉलिसिटर आता है तो आप ऐसे आंखें चमक रही हैं, हालांकि वो कुछ ऐसा तो नहीं आपको निकाल देगा, या थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो ये यानी कि भाई वो क्योंकि उसको हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है, और बंदा है तो वहाँ नहीं मदद कर आपकी, वहाँ solicitor, the barrister comes, the prisoner becomes happy at least. For example, he has high morale and he think at least he can present his case somehow, because the solicitor come with the permission of the government. Similarly, the prophets, they will be there with the izn of Allah subhanahu wa ta'ala, because on that day even prophets cannot speak without izn, because everyone, all Bani Adam will go to Sayyidina Adam alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Musa. They say we don't have this, we cannot say anything today, we are silent, हम तो खामोश हैं, अल्लाह हमें बचा, रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी रब्बी नफ्सी, अल्लाह हमें बचा हमें बचा। They are on their own places. Hazrat Ibrahim alayhi salam is holding the pillars of Arsh, the throne, he is holding, Ya Allah Rabbi nafsi, mujhe bachana, I don't ask of anyone. Hazrat Isa alayhi salam is calling Allah, he is in his salah, he is in his prayer. Hazrat Musa alayhi salam was speaking for Allah subhanahu wa ta'ala, he is asking, Ya Allah save me. They are worshipping Allah, they are not with people, वो लोगों में नहीं खड़े, मीज़ान पे नहीं खड़े, लोगों के साथ वहाँ अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और अपने अपने मुकामात जो अल्लाह ने हाई मुकाम उनको दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला given them very high stations on the day of judgment. They will be on their own pulpits, their own members, their own stations. वो तो अपनी अपनी मसाजिद, अपने अपने मुकामात और अपने अपने जो हाई प्रिविलेज्ड स्टेशन अल्लाह ने नबियों के लिए रखे हुए हैं, वो तो वहाँ होंगे। ये कौन है? एक हस्ती जो गुनाहगारों में फिर रहे हैं, और गुनाहगारों में जो है वो चल फिर रहे हैं, फासिकों फाजरों के अंदर फिर रहे हैं, मीज़ान पे जहाँ सब हर किस्म का गुनाहगार बद नेक आ रहा है, ये भी उनमें खड़े हैं, बजाय अंबिया के अंदर खड़े होने के, बजाय फरिश्तों के अंदर खड़े होने के। इसको कहते हैं मोहब्बत। हमने तो हमारी किसी लड़की ने कहा मेरे तुमसे प्यार, हमने सुना इसी को प्यार, उसको कोई प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं होता, ये लस्ट होती है। वो तो एक धोखा, दुनिया एक धोखा है, उसमें प्यार के दावे भी धोखा है। वो लोगों को पता होता है, इसी जब चंद साल गुजरते हैं फिर क्या होता है, नहीं कौन साथ देता है। तो ये तो दुनिया का मामला है, चलो किसी ने दे भी दिया साथ, मौत के वक़्त कौन देगा आपका, कब्र में कौन देगा, हशर की बात कर रहा हूँ। So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidah Aisha Siddiqa radiyallahu anha that my address will be मीज़ान, मेरा एक पता तो अगर मुझे ढूंढना हुआ वो मीज़ान। वहाँ क्या कर रहे हैं हुजूर? एक तो आपका वहाँ होना ही रहमत है, क्योंकि अल्लाह की तो सारी तवज्जो हुजूर अलैहिस्सलाम पर होगी उस दिन, क्योंकि वो अल्लाह सबसे ज़्यादा मुतवज्जे जिस तजल्लियात जो उतरती हैं अल्लाह पाक के कुर्ब की, मार्फत की, इतनी आरिश पर भी नहीं उतनी जितनी हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अत्थर पर होती हैं, क्योंकि वो तो भी मखलूक है अल्लाह की, वो तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है उनका, लेकिन है वो मखलूक की, और मखलूक में सिर्फ, लेकिन अर्श का नबी कौन है? अर्श का नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो उम्मती है हुजूर अलैहिस्सलाम का।
जिस तरह आप उम्मती हैं, अर्श भी उम्मती है, जन्नत भी उम्मती है, जहन्नम भी उम्मती है। इसलिए तो अल्लाह पाक फरमाया रहमतल लिल आलमीन, पत्थर भी उम्मती हैं, जिब्रील भी उम्मती है, आसमान भी उम्मती है। अल्लाह पाक ने अंबिया को फरमाया कि आप भी ईमान लाओ इस हस्ती पर, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, ईमान ले आए तो वो भी नबी भी हैं, उम्मती भी हैं, वो एक ही किस्म। यानी उम्मत से मुराद ये है कि उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान की, उन्हीं की नबूवत का, अगर वो आए उनकी नबूवत में तो वो उन्हीं के पीछे चलने वाली उम्मत होती है। तो वो ये हजूर अलैहिस्सलाम का ख़ास मुकाम है, जो ख़ातमुन नबिय्यीन जो मैंने आयत पढ़ी, ये उसका यानी इशारा है इसमें। सो व्हाट विल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल बी डूइंग देयर, आप अलैहिस्सलाम वहाँ क्या कर रहे होंगे? एक तो बताया आपको हौसला अफजाई, आपका वहाँ आना ही, आपका वहाँ मौजूद होना ही इतना बाइस शफ़क़त मीज़ान पर। दूसरा, आप अलैहिस्सलाम, फरिश्ते भी आप अलैहिस्सलाम का अदब करते हैं। आप किसी शफ़ाअत फरमाएंगे किसी की, किसी ने आप पर दरूद पढ़ा होगा, ऐसे वाक़यात हदीस में आते हैं। किसी उम्मती जहन्नम में ही बस की अमाल नहीं, आप अलैहिस्सलाम अपने दरूद शरीफ जो उसने पढ़ा वो आप अलैहिस्सलाम को भेजा है और आप अलैहिस्सलाम उसको डाल रहे हैं। और बाज़ आरिफीन ने लिखा कि हजूर जैसे दूसरे नेकियां अपनी तकसीम कर रहे हैं, तो हजूर अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं इख्तियार अपनी नेकी, वो अपने अमाल में से कुछ डालेंगे वहाँ अपने उम्मतियों के हिस्से में भी जा जाए, ये शफाअत करेंगे। दूसरे लोग नेकियां अपनियाँ ले रहे हैं, दे रहे हैं, भाग रहे हैं, गुनाहगारों की नेकियां इधर, नेकों की उधर जा रही हैं। So that is one way of helping the shafa, doing shafa of the for the ummah, for actually them also doing for Allah subhanahu wa ta'ala, pray to Allah azza wa jal. And similarly, if he wants, he can add virtues to there. तो दुरूद किसी ने पढ़ा है सलाम। And second thing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisha, that is one of my addresses on the day of judgment. The second address is the Hawd of Kawthar, the spring, the river of Kawthar, which will be the only river, meaning of Jannah, present in the Hashr. There will be no other water. पूरे हशर में कोई पीने का ड्रिंक नहीं है, कोई खाने की चीज़ नहीं है, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं, सिर्फ एक ही हौद कौसर जो है वो है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, या मुझे तुम वहाँ देखना, दूसरा मेरा पता है नहर कौसर, पूछना नहर कौसर कहाँ है, वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा शायद। सेम क्वेश्चन, वहाँ क्या कर रहे होंगे हुजूर इस्लाम, व्हाट विल बी ही डूइंग देयर? वो अपने आप को तो नहीं पिए, वो तो जन्नत खुद ही, यानी अपना जन्नत उनकी उम्मत में है। मैंने आपको बताया बिकॉज़ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जन्नत अल्लाह की इबादत करती है। सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह को रब के तौर पर, माबूद के तौर पर पहचानती नहीं। ज़मीन आसमान में जितनी चीज़ें हैं, जानदार, बेजान, पत्थर, पहाड़, और मुझे वो नबी के तौर पर और रसूल के तौर पर ना जानती हो, कोई ऐसी शय नहीं। इंसानों को शक हो सकता है हजूर अलैहिस्सलाम नबी हैं या नहीं, अबू जहल को शक हुआ, अबू लहब को नहीं पता चला, पत्थरों को कोई शक नहीं हुआ, दरख्तों को कोई शक नहीं हुआ, जानवरों को कोई शक नहीं हुआ, ज़मीन को कोई शक नहीं, आसमान को कोई शक नहीं। वो हर चीज़ जो है, जानवर तक, हिरनिया, शेर, हजूर अलैहिस्सलाम के पास जो है भेड़िए मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाते, और वो आते कि भेड़िया आया, या रसूलुल्लाह, वल्फ, he came that we live in you live in Medina, or the prophet, you are our prophet and messenger, आप ही हमारे नबी रसूल भी हैं, तो हम नहीं चाहते आपकी जो बकरियां आपकी मदीना की हैं उनको हम नुकसान पहुँचाएँ, ये बेअदबी है, ये हदीस में आता है। तो आप खुद ही, you yourself ask your companions to give us some share, 10 goats every day, or 15 every day, whatever share, and we won't touch any goat, any sheep of Medina. जानवर भी इतना अदब हजूर अलैहिस्सलाम का कर रहे हैं कि आपके शहर का भी अदब कर रहे हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका भी अदब कर रहे हैं। वो हमारे लोग हैं, यहाँ से जाएंगे उम्रे पे, हज पे, वहाँ का अदब करना तो एक तरफ रह गया, आपस ही में लड़ लड़ के वापस आ जाते हैं। ये है अदब हमारा।
आप जैसे देखते ही हैं, जानते हज पे लड़ रहे हैं, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, माँ बेटा, वो आपस कंप्लेन है, ग्रुप लीडर ग्रुप वालों से, ग्रुप वाले जो है उस लीडर से टांगे खींच रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। हाँ, हम कहा ऐसा है कि भाई ये 2 हफ्ते पता नहीं क्या करने आए हैं वहाँ। तो भाई वैसे कहेंगे हम तो जी यहाँ नाते सुनेंगे, जी हाँ साडा असी ते उत्थे दे कुत्तियां नूं भी जिहड़ा सलाम, उत्थे दे कुत्ते भी साडे नालों अच्छे हैं, उस दी गलियां भी अच्छियां, असी अखां नूं सुरमा लाई उत्थे दी मिट्टी दा, और वहाँ जाके उन्हीं लोगों को गालियाँ जो साथ गए हैं उनको भी बदतमीज़ी, और वहाँ अल्लाह और उसके रसूल को भी यानी नाराज़ करना, वो ये करने आते हैं। तो कितना वो जो यानी तजाद है, क्या कर रहे हैं। और वो भेड़िया द वल्व्स जिनका काम ही है खाना पीना, जानवर हैं। They came to Rasulullah, their leader, they made a representative who came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, Ya Rasulullah, if you assign certain share, 10, 15 goats, whatever, we won't touch any goat or sheep of Madinatul Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, okay, I cannot force anyone, but I will ask the companion. He said to the companion, oh companion, this is the leader or representative or ambassador of wolves. He has come and that's what he is saying to me. It was a strange scene, a wolf speaking to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba are witnessing, other people are witnessing, and he is with adab and actually sitting there. अदब के साथ क्या सीन है कि भेड़िया जो है वो आके अदब के साथ बात कर रहा है, अदब वाली बात कर रहा है, मोहब्बत वाली बात कर रहा है। तो भेड़ियों को तो हो कि हम हजूर अलैहिस्सलाम के शहर की बकरियों को हाथ ना लगाएं। कितने बदबख्त हैं वो इंसान जो आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। Wolves are actually appreciative, saying we won't touch any goat and sheep of Medina because they live in the city of Medina. And how unfortunate are those people who are dishonoring and disregarding the sunnahs of Rasulullah which came out of his own body. लोग तो अपना कहते हैं ये हजूर इस्लाम की चादर है, ये नबी अलैहिस्सलाम का ये तबर्रुक है। Those things touched Rasulullah. उन्होंने तो उन चीज़ों ने तो हजूर इस्लाम के साथ मस हुई, उनमें फजीलत आ गई. They became blessed. Sunnahs are which came out of the body of Rasulullah. तो सुन्नतों की उससे भी ज़्यादा, क्योंकि वो हजूर इस्लाम के जिस्म के अंदर से निकली हुई चीज़ें. They are part of the body of the Prophet. They came, they emanate the ways of Rasulullah, the habits, his way of speech, his way of looking, his way of talking, his way of doing all these matters. They came out of Rasulullah. Everyone can copy. Everyone cannot have the tabarrukat, but everyone can follow Rasulullah in his lifestyle, in his way. Everyone has this opportunity. And the blessing is on that person. So the wolves come and say, Rasulullah alayhi salatu wasalam asked the Sahaba Rizwan Ujmain, O my Sahaba, O my companions, that this is wolf and he's asking, can you give him, do mashwara 10, 15 or whatever, goats and sheep every day, and they won't touch. You can leave your goats and sheep and cattle free. You don't even need to keep shepherd. No, nothing is going to touch them. Sahaba Ikram looked at each other and they said, Ya Rasulullah, if it is your instruction, we can do. But if you are giving us the choice, then we don't like to give our goats with our own hands in the mouth of the wolves or to wolves. We have fed them, we keep them. This is not acceptable to us that we give ourselves these to the wolves. They are not going to give. So Rasulullah said to the wolf, they have declined your offer. There is no disrespect. You take your share, whatever you can. You're free. Whatever rizq Allah has written for you, you take. There's no disrespect, no complaint against you, no disrespect you are doing. You are free. आपने फरमाया कि ये सहाबा इकराम नहीं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं ये भेड़ें बकरियां नहीं देंगे, तो अब तुम्हारी कोई बेअदबी नहीं, तुम पर मैं खुश हूँ, तुम अपना हिस्सा जो बनता है जहाँ तुम्हारा जो है बस चलता है अपने ले जाया करो. Meaning this is one of the
asking you that how other things, that when human beings, some are believing, not believing, some after believing they are half-heartedly following, not following, but the animals and all these things. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as I mentioned, said to Amma Aisha Siddiqa radiyallahu anha that the second place, second address of mine will be Hawd of Kawthar, where I will be with my own hand distributing and actually giving the drinks of the reservoir of Kawthar, the river of Kawthar, to the ummatis who will come thirsty. So this is the person who others are thirsty, and he, alayhi salatu wasalam, is actually quenching the thirst, actually physically the thirst as well, and spiritually as well on the book, on the Mizan. And he said, "O Aisha, the third address of on that day, on that very long in 1,000 years, sometimes, some years I will spend there, some years there, and some time you can find me. If you do not find me on those two places, then I will be near the bridge of Sirat." The bridge of Sirat is a very dangerous place because that's where everyone is going to fall or not fall. Everyone have to. Everyone have to go there. And it's a long, many questions, many reflections, a person will be asked. Yeah, there are certain questions. कुछ सवाल हैं जो उस पुल पे होंगे बंदे से, जो जहन्नम के ऊपर पुल है, वो कुछ सवाल ऐसे हैं वो बंदे से वहाँ पूछे जाएंगे उसकी ज़िंदगी के बारे में, और वहाँ भी. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that I will be there as well for some time as well for the helping and support. So he alayhi salatu wasalam did not show the love here only, but in Hashr, in Barzakh, in Jannah, everywhere. So coming back to the point which I mentioned in the beginning, that Allah subhanahu wa ta'ala chose him for us, to send to us as a gift. Now you are becoming happy, someone gifts you money, someone gives you a gift of car, and imagine someone gives you a gift of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What is this? What is the comparison? There is no comparison. Even you cannot compare Jannah. That is why Allah subhanahu wa ta'ala said, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ. That is why one should be happy and one should actually be thankful, shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, to celebrate the coming of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. But on the same occasion, that if you do not benefit from his mercy and his guidance, then you have become happy, but not Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I will just read some of the guidance of Sayyidina Abdul Aziz, given in the presence of Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, and other Mashayikh, Awliya, Sulaha, about the coming, about the blessing of Rahmah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They said that many people celebrate the coming of the Prophet alaihi salatu wasallam. Mashayikh Awliya फरमाते हैं कि बहुत सारे लोग हजूर अलैहिस्सलाम के आने की, मुसलमान ख़ास तौर पर जो है वो खुशी मनाते हैं, into this world in different ways, मुख्तलिफ तरीक़ों से. अब उसमें ये है कि अगर देखें नमाज भी आप गलत तरीके से पढ़ेंगे, हज गलत तरीके से करेंगे, वो गलत हो जाएगा. इसी तरह जो आप खुशी या शुक्र मनाना या हजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद, उसमें कोई गैर शरई चीज़ लाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. अच्छे तरीके से शुक्र और खुशी करेंगे, जायज़ जो शरीयत ने जिन चीज़ों की इजाज़त दी है, भी खुशी, खाना खिलाओ, दूसरे के साथ अपना नात पढ़ो, नशीद पढ़ो, जो अपना जायज़ तरीके शरीयत ने रखे हैं, तो वो जायज़ और सवाब का काम बन जाएगा. लोग पूछते रहते हैं ऐसे मिलाद मनाना चाहिए, ऐसे नहीं मनाना चाहिए. मैं आपको उसूल बता दिया है, जो काम जायज़ है वो हर जायज़ तरीके से खुशी बंदा मना सकता है, हर नाजायज़ तरीके से मनानी नाजायज़ है. वो आप मिलाद छोड़ के आप हज पे जा रहे हैं, हज गलत तरीके से करेंगे, लोग कहेंगे कि भाई हज आप गलत कर रहे हैं. नमाज अच्छी इबादत है, बट इफ़ यू आर प्रेइंग 3 रकात इंस्टेड ऑफ 2, और टॉकिंग इन द प्रेयर और वॉकिंग इन द प्रेयर, वो नमाज. लेकिन उसमें नमाज का तो कसूर नहीं, उसमें ये तो मत कभी नमाज ना पढ़ो या
रोज़ा ना रखो या हज ना करो, बल्कि ये भाई सही पढ़ो। इस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का आना वो तो बाइस बरकत, वो तो रहमत है ही है, तो उससे पहले तो कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप क्या करते हैं उसके जवाब में, जो है शुक्र अल्लाह का किस तरह करते हैं। जिस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मसलन कई जायज़ तरीके, आपने रोज़ा रख के अपनी खुशी मनाई, आपने शुक्र किया, अल्लाह का शुक्र ही है। फरमाया आपने रोज़ा रखा ही, अलैहिस्सलाम यूज्ड टू फास्ट ऑन एवरी मंडे to celebrate, be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that He has sent him. So many people are celebrating the coming of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this world. They gather together, walk as one, praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam in different ways. They return, deliver speeches, celebrating with special food. They show that they are happy that He is coming to this world, that they are pleased of His coming. But they mention this is not the real celebration which pleases me. यानी वो फरमा रहे हैं कि एक है आपका खुश हो जाना हजूर अलैहिस्सलाम के आने पर, वो तो आपने खुश अपने दिल को खुश किया, खाना खाया, खिलाया, जो भी किया। फरमा रहे हैं कि असल खुशी तो तब है कि जब आपसे हजूर अलैहिस्सलाम का दिल भी खुश हो जाए। उनके दिल बात के तो ख्याल करो ना, वो कैसे खुश होंगे। अबू लहब को खुशी मनाने की वजह से वो जहन्नम में भी उसकी उंगली से वो कुछ पानी मिलता है उसको, जैसे बुखारी शरीफ में आता है कि उसने खुशी की हज़रत अलैहिस्सलाम के आने की खुशखबरी, जो भी बांदी को आज़ाद किया। लेकिन हज़रत अलैहिस्सलाम का दिल दुखाने, उनका दिल खुश ना करने की वजह से वो जहन्नम में चला गया। तो दोनों चीज़ों का पता भाई, आप अलैहिस्सलाम की जो खुशी, उसकी फजीलत कितनी बड़ी कि काफिर को भी नफ़ा किसी किस्म का हो रहा है, और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दिल को खुश ना करे फिर उसका भी कोई जो है ख़ास फ़ायदा नहीं, कि उनके दिल को तो दुख देता है। पड़ोसी था, उनको कांटे फेंकना, ये करना, ईमान ना लाना, तकलीफ़ देना, तो वो जहन्नम बन गया। तो ये दोनों सबक उससे मिलते हैं, उस वाक़े से, उस ख्वाब से जो इमाम बुखारी ने नकल किया। वी कैन गेट टू दैट अबू लहब was happy and he was blessed from that point of view. So this means that this is a great blessing a person can get from being thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and this blessing and a great virtue, a benefit in the dunya akhirah person can receive. But at the same time he did not please Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उसने आप अलैहिस्सलाम को तो खुश नहीं किया, उनके आने पर खुश हुआ, लेकिन उस हस्ती को खुश नहीं किया। उस वजह से वो जहन्नम में चला गया। और जो अपनी खुशी मनाई, वो तो अल्लाह ने उसको ये नेमत दी कि अल्लाह के महबूब हैं आप अलैहिस्सलाम, तो जो उनकी खुशी अल्लाह ने करम किया, लेकिन उसने तो कोई खुशी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी नहीं पहुँचाई, तकलीफ़ देता रहा ज़िंदगी में। तो यही ये मशाइख फरमा रहे हैं कि असल मिलाद मुकम्मल तब होती है कि जब तुम अपने दिल के साथ हजूर अलैहिस्सलाम का दिल भी खुश कर दो। और वो कैसे होगा? यू हैव बीन प्लीज्ड बाय हिज कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड, so when will you all please Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with your coming towards his life and obedience and the sunnah and lifestyle? फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो आ गए आपकी तरफ, तुम खुश हो, तुम कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओगे? When will you come towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? उनकी मोहब्बत की तरफ कब आओगे? उनकी सुन्नत की तरफ कब आओगे? उनके तरीके की तरफ कब आओगे? उनकी ज़िंदगी के तरफ कब आओगे? तुम नहीं आ रहे, वो तो आ गए, 1400 साल हो गए, but me and you are not actually coming towards him. हम उनकी तरफ नहीं सफ़र कर रहे, हम कहीं और सफ़र कर रहे हैं। When will you please Allah who has given you the most special gift? What will you give in return? Allah is the giver of this gift. अल्लाह ने आपको तोहफा दिया, तो अल्लाह पाक को जो है आप क्या वापस दे रहे हैं, उसको क्या, what are you giving back to Allah subhanahu wa ta'ala? True celebration is not to cause inconvenience to others, but to show others how to behave in my way. True celebration is when you will truly walk in the community as one with the embodiment of both inwardly and outwardly in the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फरमाया कि असल जो है खुशी हजूर अलैहिस्सलाम को इससे पहुँचेगी कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम जुलूस में चल रहे हो, खाना खा रहे, नहीं, बल्कि तुम हमेशा के लिए जैसे जब भी चलो तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके के साथ चलो, आपकी सुन्नतों में ढके हुए
सजे हुए चलो कि कोई बंदा देखे उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आए तुम्हें देख के। फरमाया ये है जो हुजूर अलैहि सलाम के दिल को खुशी पहुंचाती है चीज़। ये औलिया सैयदना अब्दुल अजीज ज़ब्बाग़ रहमतुल्लाह ने फरमाया इससे जुलूस में अगर तुम शरीयत के ख़िलाफ़ चल रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे, उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर वैसे आप चल रहे हैं सारा साल चलते काम के लिए, शॉपिंग के लिए, लेकिन आप सुन्नत के मुताबिक जिससे मामला कर रहे हैं उससे सुन्नत के मुताबिक मामला कर रहे हैं, आप सुन्नत के मुताबिक तरीका इख्तियार कर रहे हैं, सो दिस इज़ द ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ ऑल ईयर अराउंड। There will be no need for any loud voices like microphone or crowd to hear you coming, but every sunnah which you abide and follow and decorate into your life will become the voice and call to all those who see you, all those who hear you. They shall surely feel my presence, the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फरमाया कि जितने तुम जब चलोगे हज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इत्तिबा और सुन्नत और आप अलैहिस्सलाम का अखलाक लेके, तो तुम्हें तकरीर की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो देखेगा उसको मेरी मुस्कुराहट नज़र आएगी, उसको मेरी नरमी नज़र आए तुम में, उसको हज़ूर अलैहिस्सलाम की नरमी, हज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक, हज़ूर अलैहिस्सलाम का माफ़ करने का अक्स कुछ ना कुछ कोई करोड़वां हिस्सा तो बंदे में नज़र आए ना। भी ये उम्मती है, इसमें कोई अरबवां खरबवां हिस्सा हज़ूर अलैहिस्सलाम के अखलाक का भी पाया जाता है, या उसकी नरमी पाई जाती है, उसका लोगों के साथ हुस्न अखलाक, लोगों के साथ नरमी करना और जो है माफ़ करना और दिल को जो है साफ़ रखना लोगों के लिए। फरमाया कि तुम ये ऐसी तरह करो कि गोया लोग जो भी तुम्हारे बारे में सुनेगा, जो तुम्हारे बारे में तुम्हें देखे, उसे महसूस हो कि तुम्हारा मेरे हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ है। You have a relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You can feel that. And that's why the Sahaba Rizwanul Ajma'in, that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, فَبِأَيِّهِمْ اُخْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, that all are stars of guidance. Whoever sees them, they are reminded immediately of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उनको जो भी, whoever sees them, whoever looked at them, whoever lived with them, they could see the reflections, the life, the character of the Prophet alayhi salatu wassalam. ये है असल चीज़। तकरीर किसी को मुसलमान नहीं करेगी, सीडी किसी को मुसलमान नहीं करेगी। ये लैपटॉप है, इसमें सारा कुरान की आयतें, हदीसें, all ahadith, all commentary, all the books of hadith, 6 books is there. What can it benefit to others? घर में भी पड़ा रहे। इसी तरह अगर आपके घर आलिम है, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे लैपटॉप पड़ा हुआ है, दूसरों को क्या फ़ायदा? Others will benefit when your interaction with other people, आपका जो उनके साथ नरमी का मामला करना और जो है माफ़ी का रखना, मुस्बत जहन रखना, to be positive about others and to agree with them unless it is sin. Like Sayyidina Ali radiallahu anhu said that what is husn akhlaq, what is good character? He said to accompany and agree and help creation with everything unless it is a sin. That is the best conduct. फरमाया हुस्न अखलाक ये है कि मखलूक के साथ हर मामले में तावन करना, सिवाय गुनाह के मामले में हर मामले में तावन करना, यही हुस्न अखलाक है। हर मामले में तावन करना, हर जायज़ मामले में तावन करना हुस्न अखलाक है। ये अपना चीज़। And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, he said Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In the Quran is mentioned, there is a verse of Quran, ये कुरान की आयत का भी हिस्सा है, टुकड़ा है आयत का, Muhammadur Rasulullah वल्लज़ीना मअहू, that those people who are with him, who are with him. So some ulama says those who are with him in his time, being in his sohbah, and those who are with him spiritually until day of judgment, who was following him truly. मैं वो लोग जो हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ थे, ज़ाहरी तौर पर सहाबा, एक तो वो मुराद, दूसरे वो जो इताअत, ईमान और आप अलैहिस्सलाम की हजूरी और रूहानी तौर पर आप अलैहिस्सलाम के क़यामत तक कहेंगे जो भी आपके साथ है माहू, उनसे ये सिफ्त होगी। एक तो वो कुफ्र के खिलाफ सख्त होगा, ही विल बी hard upon kufr, disbelief and sin and kuffar, ruhama'u bainahum, but in between themselves, in their families, in their friends, in amongst community,
they will be the most merciful, the most gentle, the most compassionate. This is the outstanding, you may say, character and sign of conduct of anyone who has close relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And thereafter Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna, ibadat and worship and salah and zakah and tahajjud and dhikr is mentioned after. Namaz, roze, hajj, zakat, ibadat, zuhud का बाद में जिक्र आया. पहले फरमाया ये सिफ्त होती है मोहम्मदी की, जो मोहम्मद सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी है, असल में जो उनका पैरोकार है, कि वो ये चीज़ है. कैसे हो सकता है कि वो रहमत लिल आलमीन है और इससे ये इसमें वो चीज़ नहीं पाई जाती है उनको, उनकी मोहब्बत का कैसे. हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब दिल में आती है तो नरमी खुद ब खुद आ जानी चाहिए. अगर नहीं आ रही तो वो फिर मोहब्बत नहीं है. असल में वो सोचता है मुझे मोहब्बत है, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है. वन इज़ द ट्रू लव. वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम, उनमें जंगें भी हुई. इमेजिन सहाबा इकराम रिज़वान, बट दे नेवर गिव साइकास्टिक remarks or criticized anyone. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु कि जंग हुई, लेकिन उन्होंने किसी की बद अखलाक़ी, किसी पर कोई तोलानत, किसी से दुरुस्तगी, कतन मामला नहीं फरमाया. पर किसी ने अगर कहा भी तो फरमाया हमारे भाई हैं, they are our brothers, we have a difference of opinion with them and they have become rebellious, but they didn't actually criticize. जिस तरह हम थोड़ा इख्तलाफ हुआ, गालियाँ, ये तुम काफिर मुशरिक, ये हो गया वो हो गया, and these matters. So that's what Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh rahimahullah, shouting, jumping and praising Rasulullah all has its etiquettes and ways to do so. This is not the way which the Sahaba Ikram Rizwan remembered Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There are there are people who miss their salah on these days than more than even other day throughout the year. I have been to so many gathering, they've not prayed. उन्होंने नमाज ही नहीं पढ़ी, ना बाद में ना पहले, घर में पढ़ते हैं ये जो भी है. It is due to their shortcoming in partaking these processions without the true following. Missing salah and delaying it, नमाज ज़ाया करना और देर करना due to the other nafal and activities, it's a false means to show others that love, they love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. आप अलैहिस्सलाम तो का तरीका क्या था? वैसे इकट्ठे होना, आप बाज़ार में इकट्ठे हैं, कहीं उम्रे पे जा रहे हैं, रास्ते में जुलूस में जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, आपकी नमाज जहाज़ में ज़ाया हो रही है, जुलूस में ज़ाया हो रही है, उम्रे पे सफ़र में जा. Rasulullah said, what was his way? His way was when heads were being cut. जब बदर में, ओहद में, खंदक में जब गर्दनें कटी जा रही हैं, हाथ कटाए जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपने जाके नमाज पढ़ी. सहाबा इकराम अज़वाज, और हम आराम से बैठे, खाना है, तकरीर हो रही है और अपना नमाज देर कर दी. वो देर नहीं कर रहे जब कत्ल हो रहा है, मुकातला हो रहा है, and they are killing each other, meaning and being martyred. The Sahaba Ikram शहीद हो रहे हैं, इतना खतरा है. But at that time the command is even one row should go behind and pray. और आज का मुसलमान ये सफ़र में जा रहा हूँ, उम्रा क्या फ़ायदा होगा, वो सारी ज़िंदगी उम्रे पे ना जाता, उसको कोई नुकसान नहीं. जो रास्ते में नमाज ज़ाया कर दी, सबसे नुकसान करके आ गया. अब वो 1000 उम्रे भी करे, उसका एक नमाज फ़र्ज़ के बराबर नहीं आ सकता. इसी तरह आप पाकिस्तान जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, जुलूस में भी शक जा रहे हैं, मिलाद का है, जिस चीज़ का भी है, भाई सुन्नत नफल का अमल करने जाते जाते, ज़ियारतों पर जाते जाते, सैयदना अब्दुल अजीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह फरमाया कि जो लोग औलिया अल्लाह के मज़ारात की ज़ियारत, कब्रों सालिहीन की ज़ियारत के लिए जाते हैं, या ज़िंदा जो सालिहीन हैं, और दूर दूर महीनों का सफ़र करके, और उनके ज़िम्मे एंड दे हैव ऑन द बर्डन, क़ज़ा नमाजें हैं, क़ज़ा रोज़े हैं, लोगों के हुकूक़ हैं, लोग मांग रहे हैं उनसे और वो नहीं अदा कर रहे, ना अल्लाह के ना बंदू के, उनको औलिया की ज़ियारत का वहाँ वली से भी कोई फैज़ नहीं मिल सकता. उसको उस अमल से और अल्लाह से वो दूर करीब नहीं वो होगा बंदा. ये तो आप जानते हैं कि जिसने हुकूक़ खाए हैं, ज़ियारत वली की करना, तो क्या अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया, जो मेरी ज़ियारत, घर की ज़ियारत के लिए आए, हराम माल का क्या मतलब होता है?
व्हाट डज हराम वेल्थ मीन? हराम माल का क्या मतलब होता है? हराम माल मीन्स यू हैव वायोलेटेड द राइट्स ऑफ अदर्स। हराम माल का आसान तरीका बता रहा हूँ समझाने का। हराम माल का मतलब है कि दूसरों के हकूक ज़ाया किए हुए हैं, नहीं अदा कर रहे आप। तो अल्लाह पाक से हदीस शरीफ में आता है कि जो बंदा अल्लाह के घर की ज़ियारत करने आता है, अल्लाह पाक फरमाता है ना तेरी लब्बैक कबूल ना तेरा हज कबूल जो है, क्योंकि उसकी सवारी है लोगों के हकूक ज़ाया करके है बंदों। तो ये मामला है, तो ख़तरा है। बाकी अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत उसकी तो कोई हद नहीं। लेकिन जो हदीसें जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों को एहसास दिलवाया, फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ़ हो जाता है पहला खून का कतरा गिरने से। एवरी सिन ऑफ अ मार्ट इज़ फॉरगिवन बिफोर हिज फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड रीचेस द अर्थ एक्सेप्ट इल्ला दैन, एक्सेप्ट एक्चुअली द डेट और द कर्ज और द राइट्स विच ही हैज़ अपॉन। एक बंदे ने पूछा वो इतना बड़ा उसको शहादत का मर्तबा मिल गया है, he has become, why is that sin not forgiven? The scholar said, if he has attained the status of shahada, what benefit is to that person who he owes money to? उसको क्या मिला है उसके? अगर उसको शहादत मिल गई है तो जिसके पैसे खाए हुए हैं, जिसके पैसे उसने लिए हुए हैं, उसको क्या नफा उससे मिला? शहादत तो उसको मिली है। शहादा has come from for him, not for him। तो उसका तो हक बाकी है, तो वो तो फिर अल्लाह पाक लेगा उससे या अपने फजल से माफ़ करे तो माफ़ करे। The true love is when you will bring peace to others। इमाम अब्दुल अज़ीज़ ज़बान फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि असल मोहब्बत ये है कि जब तुम दूसरों से भी मोहब्बत वाला रवैया रखो। ये क्या मोहब्बत हुई? दिल में मोहब्बत है, मुंह पे गालियाँ हैं और पीछे ग़ीबत है और आगे चुगली है और आगे हकूक माना। ये कोई लव है? दिस इज लव। ट्रू लव इज व्हेन यू ब्रिंग पीस टू अदर्स। दूसरों को भी मोहब्बत का एहसास दिलाना, उनको सुकून देना, उनको इत्मीनान देना, खुशी देना। टू देयर हार्ट्स एंड माइंड्स। हम रात दिन घर में हैं तो मियाँ बीवी मियाँ को तंग कर रही है, ताने दे दे के खामद बीवी को मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ये कर दूँगा, वो कर लूँगा। बीवी ये कह रही है, वो कुछ कह रही है, तुम जो है वो क्या वक्त था मैंने जो तुम्हें चुन लिया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब यानी ज़हनी टॉर्चर भी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, हराम, यानी वो हराम है। यानी किसी को ज़हनी तौर पर भी तकलीफ़ देना, किसी का दिल गमगीन करना, दिल को परेशान करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खुश ऐसे बंदे से नहीं होते। और दूसरों को तंग करना, जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी बातें प्लान बना के, आफ्टर मेकिंग प्लान एंड स्प्रेडिंग फॉल्स एक्विजेशन सो दैट पीपल आर डिस्टर्ब, उनकी इज्जतें पामाल करना, ये सारे लोग शैतानी हैं। ये जितना मर्जी हज उम्रे करे, नमाज इनकी ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना ये चीज़ है। ये हदीस कुदसी बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अतक़ब्बलुस सलाह, मैं सिर्फ उसकी नमाज कबूल करता हूँ जो, वहाँ पे आगे जिक्र है, जो मेरी मखलूक के साथ अच्छा रवैया रखता है। नहीं रखता उसकी नमाज भी अल्लाह ने फरमाया रद्द है, मरदूद है। हमने खुद पढ़ा अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। वो वक्त नहीं, वरना मैं आपको हदीस सुनाई भी थी कुछ चंद महीने पहले और या हफ्ते पहले, कि उसमें 10 अल्लाह पाक ने सिफतें बयान, अल्लाह मेंशन 10 क्वालिटीज, आई ओनली एक्सेप्ट द सलाह ऑफ दैट पर्सन। इन्नमा तक़ब्बलुस सलाह मिम्मन तवाज़अ बिहा लिअज़मती। पहली सिफत अल्लाह फरमाए जो मेरी मखलूक के सामने मेरी अजमत की वजह से वो रवैया रखे, आजिज़ाना इनकसारी का रवैया रखे, उसकी नमाज कबूल है। वलम यस्ततिल अला खल्की, जो मेरी मखलूक पर शोखियाँ ना मारे, जो उन पर बढ़ाई और उनको पर गलबा पाने और उनको तंग करने और उनको खौफ और उन पर तकब्बर, ये उसकी नमाज कबूल है। दैट इज़ द प्रेयर विच इज़ एक्सेप्टेड। और हम इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए लोग भी ताना देते हैं भाई ये नमाजी है, घर बीवी इसकी तंग है, बीवी है तो खामन तंग है, वो नहीं तो बच्चे जो वालिदैन तंग है, पड़ोसी तंग है, जिसके साथ कारोबार कर है वो रो रहा है कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, वो तो ये वो नमाज रोज़ा वो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। हुज़ूर अलैहि सल्लम रुब्बा साइम लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइम लैसा लहू मिन क़ियामिही। फरमाया बहुत सारे इबादत गुजार, कायमुल लैल, नमाज़ें इबादतें नफल पढ़ने वाले, उनको जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे रोज़ादार हैं, उनको रोज़े
भूखे रहने के, वो यही लोग हैं जो अल्लाह की यानी अल्लाह की मखलूक के साथ। तो फरमाया कि ये है forgiving others is forgiving yourself peace as well, giving yourself। अगर खुद सुकून चाहते हो, माफ़ कर दो, तुम्हें भी सुकून तब मिलेगा। वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस आवर लाइफ मोस्ट। हम समझते हैं अंदर हसद पालना, मैं क्यों अगले को माफ़ करूं। वेल यू आर टॉर्चरिंग योरसेल्फ। इफ़ यू वांट पीस, फॉरगिव अदर्स, यू विल गेट पीस। उसको तो मिले या ना मिले, आपको सुकून मिल जाएगा। अदरवाइज द अदर पर्सन विल बी टॉर्चरिंग टू यू because the hasad, the both and other things are actually developing in you. Who are they developing in? In you. And there's only one way to release button. उसका release button जो है, action release button is called forgiveness. उसको माफ़ी कहते हैं। वो दबा दें, सब चीज़ बाहर चली जाएगी, आप सुकून में आ जाए। बहुत सारे लोग बीमार हो गए, दिल की बीमारियां वगैरह वगैरह, ये परेशानियों की, डिप्रेशन हो गया, बिकॉज दे डोंट फॉरगिव पीपल। छोटी छोटी बात, फ़लाँ मुझे सलाम नहीं करता, फ़लाँ मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाता, फ़लाँ मेरे जो है वो मुस्करा के नहीं मिलता, फ़लाँ ने मुझे कर्ज़ नहीं दिया, फ़लाँ जो है वो मेरी मदद लिफ्ट नहीं दी उसने मुझे, फ़लाँ ने मेरी बात नहीं सुनी, ही डिड। तो वो खुद अपने आप को तंग कर रहे हैं। दे आर वॉकिंग मीनिंग टॉर्चरिंग देमसेल्फ। और माफ़ी का रवैया हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो तरीका था, यही वो फरमाने से ना, व्हेन यू विल स्टॉप टॉर्चरिंग योरसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज ऑफ शैतान। फरमाया कब तुम खुद को नुकसान पहुँचाने से रुकोगे, खुद को टॉर्चर कर रहे हो, ज़िद की वजह से लड़ाई, अब सिर्फ एक बात की वजह से मैं ज़िद्दी हूँ, सुलह नहीं करनी, सुलह नहीं करनी, और जो है अपने आप को नुकसान दे रहे हैं। बहुत सारे मियाँ बीवी के ऐसे मामले हैं कि 10-10 साल वो नाराज़ रहते सिर्फ एक बात पर, बिकॉज ही शुड से दिस, शी शुड एक्सेप्ट दिस। ये जैसे वो दुनिया में इसी के लिए आए हुए हैं। ट्रू लव इज़ व्हेन यू गेट बैक एंड ट्राई अगेन इन अचीविंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह। फरमाया असल मोहब्बत में सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि जब गुनाह हो जाए, गिर जाए, गलती हो जाए, तो माफ़ी मांग के दोबारा उठ जाना, फिर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना। दिस इज़ ट्रू लव। तो गेट बैक अप अगेन। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, गुनाह हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं, जितना उसकी जस्टिफिकेशन करना और फिर उसको उस पर तौबा ना करना। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वल्लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जालिम तो असल में गुनाहगार है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो तौबा नहीं करते वो जालिम है। बड़े गुनाह हो जाना, गलती हो जाना, ये इंसान से होती है, ये कोई ऐसी बड़ी अजीब बात नहीं। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट एक्सपेक्ट दैट वी वोंट सिन। ही डज वांट अस नॉट टू सिन, बट ही डजंट एक्सपेक्ट अस दैट वी वोंट सिन। बट शी इज सेइंग ट्रू लव इज व्हेन यू गेट बैक अप एंड ट्राई। यही मोहब्बत का है तरीका। बस आपका महबूब नाराज़ हो जाता है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं, इफ़ यू लव समवन दे बिकम डिसप्लीज, तो आप क्या करते हैं, उनको राज़ी करने की कोशिश। ये नहीं कहते अच्छा जी हो गए नाराज़, आप क्या करें, फिर मोहब्बत ही नहीं। तो अगर आप गुनाह हो गया है, गलती हो गई, सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो गई, शैतानी तरीके पे आप चल पड़े, कोई बात नहीं, अभी वक्त है, उठ के खड़े हो जाए। यही मोहब्बत करनी। लविंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज दैट यू ब्रिंग पीस इनटू योर लाइफ by cleansing your hearts from disobedience. Loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to love others. फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये है कि दूसरों से मोहब्बत करो, उनकी वजह से, उनकी उम्मत से मोहब्बत करो। क्या अगर आप अलैहिस्सलाम से आपको मोहब्बत है, तो जिस चीज़ से उनको मोहब्बत है, आपने फरमाया हसन हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और एक में आपने फरमाया मैं उम्मत से तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। So if he loves the ummah more than anything else in the creation, except Allah subhanahu wa ta'ala, then you should love the ummah. And who is the ummah? The people living around you, not the people living in Australia, in America, in some remote island who you will never meet in your life. It's the people very around you who are dealing with you, your family, your community, and your local people. यही है आप। So फरमाया loving the Prophet ﷺ is to love. इसलिए सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के was mentioned once he was in his room and through vision or kashf, whatever happened, like sometimes it happened with awliya sulaha, he saw two angels. दो फरिश्ते आपने देखे, वो लिख रहे थे registers, they were writing registers. And Hazrat Ibrahim bin Adham said, what are you writing?
they said, we are writing the names of people who love Allah. He said, my name is there as well. My name, he said, we can't see, we are right. Whatever we know, we are writing about those people who love Allah subhanahu wa ta'ala. He said, well, I love the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and I love Allah, but I love the creation of Allah for Allah subhanahu wa ta'ala. Do find out about me. मेरे बारे में भी अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करना. मैं उसकी मखलूक से मोहब्बत करता हूँ उसकी वजह से कि उसकी मखलूक है. The second night again he saw the same angel and they were distant, and he said, what is the situation? मेरा भी कोई नाम है. उन्होंने कहा, इस शहर में आपका नाम सबसे ऊपर है लिस्ट में अल्लाह को मोहब्बत करने वालों में से. Because who love the creation of Allah, Allah loves them most. It means that He loves me the most as well. But the love should be for Allah subhanahu. वो अल्लाह के लिए मोहब्बत, नफ्स के लिए मोहब्बत ना हो. आपने सुना होगा वो कि सबसे ज़्यादा अल्लाह को वही बंदा महबूब है जो उसकी मखलूक से ज़्यादा नफ़ामंद है उनके लिए, नफ़ामंद है उनके लिए. तो ये, you can't separate the creation from yourself or having a direct type relationship with Allah subhanahu. ऐसे का तसव्वुर नहीं. This is शैतानी का idea. I don't want to honor Adam, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तो मैंने इज्जत नहीं करनी, एहतराम नहीं है, लेकिन अल्लाह मेरे आपके साथ तल्लक, मैं डायरेक्ट तल्लक चाहता हूँ आपके साथ. मैं ठीक है, आप मेरे साथ ठीक रहें. इनको ये कैसे आ गए आदम अलैहिस्सलाम बीच में? Allah subhanahu didn't accept. He didn't have any problem to worship Allah, to praise Allah. अल्लाह के साथ मोहब्बत, अल्लाह के साथ प्यार, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत करने में उसको कोई मसला नहीं था. वो कहता मैं ठीक हूँ, मैं जितनी करूँ, कोई सजदे ही सजदे मैंने किए हैं. लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर मेरी मखलूक से मोहब्बत नहीं, उससे बेअदबी करोगे, मेरे नबी से, उसकी पैदाइश से खुश नहीं, क्योंकि उस वक़्त ये भी पैदाइश का जिक्र है. वो आदम अलैहिस्सलाम की गोया विलादत तो नहीं कह सकते, तख्लीक, गोया उनका भी मिलाद, वो एक पैदा होने का मौका था. फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं उनके अंदर रूह फूंक दूँ, फ़क़अू लहू, उस वक़्त सजदा करना. ये अल्लाह ने नबी की शान बताई कि जो नबी जब पैदा होता है, यानी नबी की जब ज़ाहिरी बातनी ज़िंदगी मिलती है, तो वो एक ख़ास मुकाम है, एक ख़ास मौका है. उस वक्त अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया, यानी अदब एहतराम के लिए. बट द मैसेज विच आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज़ कि क्रिएशन को, मखलूक को मत समझें कि अल्लाह के साथ आप डायरेक्ट चल रहा है आपका मसला, या यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद अल्लाह. शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई सिस्टर, नेबर, और आई एम नॉट, मैं हज पे जा रहा हूँ, उम्रे पे जा रहा हूँ, और जी मैं अपनी नमाज पे जा रहा हूँ. ये लोग, ये दुनियादारी है. दुनियादारी ज़रूर है, लेकिन आपसे कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी करे, उनको तकलीफ़ पहुँचाए. फिर वो दुनियादारी नहीं, शैतानदारी बन गई है. फिर वो इट हैज़ बिकम शैतानी का आइडिया. यू मस्ट हैव हर्ड द हदीस ऑफ सही मुस्लिम where Rasulullah said, the hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala say on the day of judgment, I was ill, I was thirsty, I was hungry, you didn't feed me, you didn't come to see me, you didn't actually feed me, you didn't quench my thirst. मैं प्यासा था, मैं बीमार था, तुम मेरी बीमार पुरसी के लिए. Person will say, Ya Allah, you are free from all these things, these qualities are not yours. Allah subhanahu wa ta'ala, yes, that is right, but my such and such servant were ill. If you would have gone there, you would have found me there. The such and such came person for a need, he mentioned his need. If you would have fulfilled, you would have found my qurb. Meaning that actually it's as though that you have done it to me, meaning that actually that good deed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's very, very important. We tend to miss this, you may say, link between Allah and actually us, which He has put the creation. To show your love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, loving Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is to love others through giving and sharing what you love. Through giving and sharing what you love. We normally give and share those things which we don't like, which we don't love. मुझे ये पसंद नहीं, तो दूसरों को दे दो. मुझे ये अच्छी चीज़ नहीं, तो दूसरों को शेयर कर लो. I don't like this, give it to others. मैं अब मर रहा हूँ, ये फलां माल सदका कर दो. फरमाया कि वो चीज़ दो कि जो जिससे तुम खुद मोहब्बत करते हो. Then you will gain the love of Allah. लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून. तो इसी तरह जो है उन्होंने और भी आगे
अपना नसीहत फरमाई। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला enable me and you to emulate the teaching, the love of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मोहब्बत की भी नकल करे, आप अल्लाह की मखलूक और उम्मत से कैसे मोहब्बत करते थे, और आपकी सुन्नत की भी नकल करें कि आप अलैहिस्सलाम जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजारी। फिर जब उस हस्ती से मोहब्बत हो जाए, सही सच्ची और इश्क हो जाए, फिर फितरी कुदरती तौर पर उनकी जो अखलाक हैं, उनके जो आदात हैं, वो बंदे में आना शुरू हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए फिर।